اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم. میں منیر شاکر. سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس میں پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میری جو الجھن ہے صلاۃ پر، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں، اس پر منطبق کریں، پھر دیکھیں کہ میں کتنا غلط ہوں. میری اس پر الجھن جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ 10 نبوی تک صلاۃ کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے رہے؟ کیا وہ یہی جو نماز ہے یہی پڑھتے رہے، کرتے رہے، اس طرح ہی کرتے تھے، 5 ہی تھیں، اسی طرح ہی جاری تھیں؟ تو پھر معراج پر آپ کو جو کہا گیا کہ صلاۃ کا تحفہ آپ لائے، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کوئی تک بنتی ہے اس کی؟ اگر پہلے ہی یہ اس طرح کر رہے تھے، پھر وہ روایت وہی آئے 50 موسیٰ علیہ السلام درمیان میں لگائے، پھر وہ 50 نمازیں، 50 نمازوں سے 25 سے وہ 5 رہ گئی. اور وہاں بھی ایک بات کی گئی اس روایت میں کہ آپ کو ثواب 50 کا ہی ملے گا. کیوں ملے گا؟ کہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، حکم تو تبدیل ہو گیا. 50 آپ نے وہ فرض ہوئی، وہ کرتے 25 ہو گئی، 25 سے 5 حکم تو تبدیل ہو گیا. تو میں یہ سوال کیوں کرتا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی؟ دوسرا یعنی کہ دونوں باتیں ہو گئی کہ وہ کیا کرتے رہے 10 سال تک صلاۃ کے نام پر. اگر وہ کرتے تھے معراج کے موقع پر، اگر وہی واپس کرنا تھا، اس کی توقع نہیں بنتی. پھر یہ وہ ساری کہانی ایسی بالکل ہی فضول، بچوں کو سنانے والی بھی نہیں لگتی کہ وہ 50 سے 5 ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا درمیان میں ملنا، اور اگر جو کچھ پہلے تھا وہی عطا کر دیا. اگر نہیں تو پھر وہ تبدیل کر دیا، تو وہ اللہ کا حکم تبدیل ہوتا نہیں. اس روایت میں بھی میں نے بتا دیا کہ یہی ہے، کہا گیا ہے کہ حکم تبدیل نہیں ہوتا. 50 آپ کو 50 کا ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا. 5 آپ نے پڑھنی ہے. اور اسی طرح یہ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے. آپ دیکھیں یہ الفتح کی 23 نمبر آیت، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے اس قاعدہ کے مطابق جو پہلے چلا آیا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا. یہ ہے جی میرے سوال، یہ ہے میری الجھن. میں آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، آپ پڑھیں اپنی پنجگانہ نماز. یہ بات اچھا، میں یہ دیکھیں، اس کو یہ میں منطبق ذرا کرنا چاہتا ہوں یا لنک کرنا چاہتا ہوں، ملانا چاہتا ہوں سید مودودی صاحب کے ایک اقتباس سے، جو میرے ذہن میں جو سوالات آپ سمجھے، میں اس کا جواز آپ کو فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں جو سوال آیا ہے اس کا جواز کیا بنتا ہے. وہ بات سید مودودی صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایک جماعت اسلامی کے بندے نے ہی اس بات کا جواب دیا کہ جی وہی چیز ہی اللہ نے واپس لٹا دی، یا کہہ دی کہ وہی جو نمازیں 5 پڑھ رہے ہیں جس طرح ہیں وہی کہا کہ یہ کرتے رہو. وہ میں نے اس کا بات میں جواب دے دیا. یہاں میں صرف چونکہ جماعت اسلامی اس لیے سید صاحب کا بہت کام ہے، میں وہ ان کا حوالہ اس لیے آپ کو دے رہا ہوں. ایک نام ہے دین اسلام سمجھیں یا مذہب اسلام سمجھیں، جس میں انہوں نے کام کیا ہے. سچی بات میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، مذہب کا کام کیا، مذہب کی خدمت کی ہے. دین اور مذہب میں اپنے مختلف گفتگو میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ مذہب کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے. مذہب میں کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، دین میں نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کا نتیجہ وہ دیکھا جائے، اس سے وہ عمل پرکھا جاتا ہے. یہ ہے فرق. تو انہوں نے مذہب کی بہت خدمت کی ہے، اس پر ہمیں پختہ تر کیا ہے. خیر، ان کی کتاب ہے اسلامی نظام زندگی، بڑی شاندار کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ اقتباس کسی مخالف نے یا کسی کتاب میں درج کیا وہاں سے اٹھا کے میں نے لگا لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صفحہ جو میں نے پڑھی، جو ایڈیشن وہ مجھے نہیں پتا کون سا تھا، اس کے صفحہ 261 اور 62 پر ہے، 2 صفحات پر پھیلا ہوا ہے. کیا ہے؟ عیسائی متکلمین نے اپنے مذہبی عقائد کی اور بائبل کے تصور کائنات و انسان کی پوری عمارت یونانی فلسفہ و سائنس کے نظریات، دلائل اور معلومات پر رکھ کر رکھی تھی. عیسائی متکلمین نے
हैं, जहां मैं लफ्ज बोलूं, जैसे हमने अपने सारे दीन की बुनियाद साहसिता पर रख छोड़ी है। कहते हैं कुरान, ये नाम का कहते हैं, ये बहुत दफा कह चुका हूं, हैं, इन पर रख छोड़ी है। चलें जो बात आगे करना चाहता हूँ। और उनका गुमान ये था कि इन बुनियादों में से किसी को अगर जरा सी ठेस भी लग गई तो ये पूरी इमारत धड़ाम से जमीन पर आ रहेगी और उसके साथ मजहब भी खत्म हो जाएगा। 61 नंबर पर है, आप देखें जो बात मैं कर रहा हूं। हाँ जी, वो इस पर वो सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो इसका जवाब ढूंढे, जवाब देने की कोशिश करें या सोचें कि 10 नबवी तक मुसलमान क्या करते रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात के नाम पर क्या करते थे, मुमकिन है कोई सूरत और निकल आए। जो कुछ हम कर रहे हैं सलात के नाम पर, ये शायद ना हो, मुमकिन की बात कर रहा हूं मैं। सलात का तो बिल्कुल ही मुनकर नहीं हूं, लेकिन जो बात कर रहा हूं वो मैं कोई फारसी नहीं बोल रहा, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं कि सलात के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सलात नहीं है। सलात का वो नतीजा नहीं निकल रहा, जो कुछ काम कर रहे हैं नतीजा निकलना चाहिए। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। खैर, मैं इक्तबास को मुकम्मल कर लूं, आखिरी लाइन, और इसके साथ मजहब भी खत्म हो जाएगा। ये सफा नंबर 261 पर है। आगे मैंने बताया ना कि लगातार चला हुआ, अगले सफे पर उनका आ जाता है। आंखों को पिछले जमाने की मानी हुई हकीकतों के खिलाफ बहुत सी चीजें रोजे रोशन में नजर आ रही थी। आंखों को पिछले जमाने की मानी हुई हकीकतों के खिलाफ बहुत सी चीजें रोजे रोशन में नजर आ रही थी। मैं खाकसार यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, क्या पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 10 साल तक मुसलमान सलात के नाम पर क्या करते रहे, तो ये आपको कोई कहानी में ये जोल नजर नहीं आता? क्या इसका कोई जवाब दो टोक आपके पास है? 10 साल का अरसा है, उसमें एक अमल है, दिन में 5 दफा हुआ, 10 साल तक क्या करते रहे? जो 10 साल तक टोटल जमाना नबूवत आपका 23 साल का, 13 साल बाकी बचते हैं, 23 साल टोटल, बाकी 13 साल बचे, क्या करते रहे? यानी कि आधा तकरीबन वक्त ऐसा है जो सलाद के नाम पर कुछ होता रहा, लगता है ऐसा है, और बाकी 13 साल सलाद के नाम पर कुछ और होता रहा, जो जिसे हम कहते हैं कि ये है जी सलाद। कुछ समझ आती है बात की? ये बात जैसे इक्तबास में दूधी साहब कह रहे हैं उनको, ईसाइयों को। मैं अपने मुसलमान भाइयों को अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी इस उलझन को दूर करें। आंखों को पिछले जमाने की मानी हुई हकीकतों के खिलाफ बहुत सी चीजें रोजे रोशन में नजर आ रही थी, मगर अहले कलीसा को, हम मजहबी पेशवाइयत को लगा ले, मगर अहले कलीसा को इसरार था कि इन मुसल्लमात पर नजरसानी करने की बजाय देखने वाली आंखें फोड़ दी जाए। जी वही देखिए, मैं इसको कहता हूँ कहा मेरी बात मुंतबिक करें, अब भी यही बात है। ये अहले जो पेशवाइयत है, जो महराब मिंबर के मालिक हैं, जो लोग मजहबी हैं, जो कुछ ये करते आ रहे हैं, उनको इसरार है कि इन मुसल्लमात पर नजरसानी करने की बजाय देखने वाली आंखें फोड़ दी जाएं। बातें की जाती हैं, मुझे इस तरह के जवाब मिलते हैं, ये मरम्मत करने की जरूरत है, इसकी मरम्मत करने की जरूरत है। आप इनके नाम दिए जाएं अदारों को या फलां को या कोई ऐसी बात, हालांकि हम क्यों खिलाफ हों किसी के। हाँ जी, बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ, मरम्मत की बात होती है कि मरम्मत की जाए। उन मुसल्लमात पर हम गौर मुकर्रर की बात ही करता हूँ। कहते हैं मुसल्लमात पर नजरसानी करने की बजाय देखने वाली आंखें फोड़ दी जाएं। दिमागों को बहुत से उन नजरियात में जोड़ महसूस हो रहा था। मुझे तो इस कहानी में जोड़ महसूस होता है। ये जो मिराज की कहानी बनाई है, और इस कहानी में खासकर ये नमाज का जो सला 5 नमाजें, पंचगाना नमाजें जो हमें मिली हैं तोहफातन जो मिली है, मुझे इस कहानी में जोड़ नजर आता है। जो जोड़ नजर आता है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा, हवा में तीर तो नहीं चला रहा, आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आप कहते हैं कि पंचगाना नमाजें ये 10 नबवी को मिली, मिराज के मौके पर मिली, तो इससे पहले सलात के नाम पर मुसलमान क्या करते थे? अगर वही कुछ करते थे जो मिला, मिलने का कोई मकसद ही नहीं रहता। अगर मुख्तलिफ मिला तो अल्लाह अपना हुक्म तब्दील नहीं करता। पहले भी हुक्म के तहत ही नबी कर रहा था 10 साल तक एक काम सलात के नाम पर, फिर 13 साल जो है कोई और हुक्म आ गया। जोर महसूस हो रहा था जिनको पहले बाज़ अकायद की अटल दलील समझा गया था,
इन नजरियात में झोल महसूस हो रहा था जिनको पहले बाज़ अकायद की अटल दलील समझा गया था, मगर अहले कलीसा कहते थे कि इन दलाइल पर गौर मुकर्रर करने की बजाय इन दिमागों को पाश पाश कर देना चाहिए जो ऐसी बातें सोचते हैं। ये सवा 262 पर है। जैसे कहते हैं ऐसे दिमागों की मरम्मत कर देनी चाहिए, ये कहते हैं। मेरा ख्याल है मैं साथ साथ बोलता गया हूं, मैं आपको एक मिनट में ये पढ़ के सुना देता हूँ पूरे का पूरा। पुराने ज़माने के ईसाई मुतकल्लिमीन ने अपने मजहबी अकायद की और बाइबल के तस्वुर कायनात और इंसान की पूरी इमारत यूनानी फ़लसफ़ा और साइंस के नज़रियात, दलाइल और मालूमात पर तामीर कर रखी थी, और उनका गुमान ये था कि इन बुनियादों में से किसी को अगर ज़रा सी ठेस भी लग गई तो ये पूरी इमारत धड़ाम से ज़मीन पर आ रहेगी और इसके साथ मजहब भी ख़त्म हो जाएगा। आंखों को पिछले ज़माने की मानी हुई हकीकतों के खिलाफ बहुत सी चीजें रोजे रोशन में नजर आ रही थी, मगर अहले कलीसा को इसरार था कि इन मुसल्लमात पर नजरसानी करने की बजाय देखने वाली आंखें फोड़ दी जाएं। दिमागों को बहुत से इन नजरियात में झोल महसूस हो रहा था जिनको पहले बाज़ अकायद की अटल दलील समझा गया था, मगर अहले कलीसा कहते थे कि इन दलाइल पर गौर मुकर्रर करने की बजाय इन दिमागों को पाश पाश कर देना चाहिए जो ऐसी बातें सोचते हैं। ये है जो मुकम्मल इक़्तिबास मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अब देखें, मुझे बताएं क्या ऐसी बात नहीं है जो मैंने सवालात उठाए, क्या जवाब देते हैं? अगर मुझे कहते हैं जी आप एक ग्रोह है जो इस तरह का इस्लाम के खिलाफ तो बहुत साजिशें हुई हैं, मैं अर्ज करूंगा पहले कुरान के खिलाफ हुई है, कुरान के खिलाफ ही इस्लाम के खिलाफ साजिश, क्योंकि कुरान बुनियाद है इस्लाम की। क्योंकि इसलिए उनको साजिशियों ने ये सोचा कि कुरान से ही दूर कर दिया जाए इस उम्मत को, लिहाजा उसके साथ से हुई। तो मैं वो भी अर्ज करूंगा, वो अलग मौजू में होगी। यहाँ सिर्फ इक़्तिबास के में और नमाज के हवाले से जो मैंने गुजारिशात की हैं, इल्तमासात की हैं, दरख्वास्त दी है, अपने सवालात दोहराए हैं, अपने जो उलझने हैं मेरी वो मैंने साफ लफाज में आपके सामने बयान की हैं। तो वो मैं चाहता हूँ इस इक़्तिबास की रोशनी में मुझे तो जोड़ नजर आता है। मदूदी साहब यही कह रहे हैं ना कि ईसाई मुतकल्लिमीन ने जो इमारत कायम की थी, बाज़ दिमागों को, जहनों को, आंखों को वो उसमें बहुत जोड़ नजर आता था, है? वो मानी हुई हकीकतें थी, पहले कोई नहीं करता था, वो देखो अटल हकीकत चली आ रही है। मगर जब कोई एक आ जाए जहन में सवाल, या आप कहें कि वो सवाल नहीं है, ये क्या है, ये एक सीधी सी बात है। 10 साल का अरसा है, एक अमल होता है, हो रहा है। आप भी इतना ही पूछा है कि वो उससे पहले आप सलात के नाम पर क्या करते थे 10 साल तक। तो बस भाई मैं ये बात ही आपके सामने इस हवाले से करना चाहता था। मेरा कोई मदूदी साहब पर ऐसा तनकीद का कोई नहीं इरादा था, ना है। ये मैं अपनी बात के जवाब के लिए आपके सामने पेश करता हूँ कि ये मुझे तो बेजोल नजर आता है ये सारी कहानी में और इस तरह की कामों में जिसका कोई नतीजा ना हो। उन कामों के बारे में मैं सोचता हूँ बिला मकसद। आप भी सोचें, आपको काम ऐसा करते हैं, आप माशरे में रहते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ करते हैं, नौकरी करते, बेमकसद काम कोई करना जिसका कोई नतीजा ही नहीं। आपने कोई ना कोई नतीजा सामने रखा होता है। वो जब आप तबलीग पे जाते हैं वो भी तो नतीजा रखा है आपने, आपको आखिरत में जन्नत मिलेगी। आप सोचे तो यहाँ नतीजे अल्लाह ताला के हुक्म मानने हैं, जन्नत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाइयों। उसके नतीजे इधर बताए हैं अल्लाह ताला ने, कुरान पाक में बताए हैं। मन मर्जी नहीं कि चलनी, खुद पसंदी नहीं चलनी, कुरान में उसके नतीजा बताया है कि इस काम का ये नतीजा होगा, इस काम का ये नतीजा होगा। जैसा कि मैंने हज की बात आपको बताया कि हज का मतलब क्या मकसद है। हाँ जी, हाँ, एक बरादरी में मुसलमानों को पुरोना है और इसके अरकान इस्लाम की ये मुंतही नतीजा इधर ही। आखिरत में जो मिलना वो तो मिलना है, जन्नत आने दो जन्नतें, आपको इधर भी जन्नत, आखिरत में भी जन्नत आपकी पक्की है। ये है, ऐसे नहीं है हवा में, ये मामला ऐसा नहीं है कि आप बस उधर तक ही रहें। इस्लाम ऐसा दीन ऐसा, इस्लाम ऐसा नहीं है, कुरान ऐसा नहीं बताता, कुरान इधर ही नतीजा बताता है। तो मैं ये सलात इतनी अहम चीज है, इस पर मैं चाहता हूँ कि जो सही जो सलात मतलूबा सलात है और जो उसका मतलूबा नतायज है अनकबूत में सूरत में आए, वो हमें नजर महसूस शक्ल में सामने आने चाहिए। तो ये हमारे बहुत सारे अकायद का जोल है, इसमें हमारे अकायद गलत हैं, खुद बनाए हुए हैं, खुद साख्ता हैं, गलत फहमी खुश फहमी में मुब्तला हैं। मैं अर्ज कर चुका हूँ कुरान पाक में कई जगह पर हमने उनके अमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए, वो समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं,
कर रहे हैं, सब दुनिया के कामों के पीछे लगे हुए, वो समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बताऊं तुमको सबसे बढ़ के खसारे वाले कौन लोग हैं? ये सूरत काफ की 102 और 103 नंबर खुद ही अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि उनकी सारी कोशिश दुनिया में गलत होगी, और वो समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो यही समझते हैं, सब काम करने वाले यही समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू जो मंदिर में जाते हैं वो अच्छा काम अपनी तरफ से समझ के करते हैं, सिख जाते हैं गुरुद्वारे अच्छा काम समझ कर ही जाते हैं। जो भी अपनी इबादत गाह में गैर मुस्लिम जाते हैं अच्छा ही समझ कर जाते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं। वो अच्छा है क्या? कुरान बताता है इधर ही कि अच्छा है, उनके नजदीक अच्छा और कोई नहीं है। वो राम राजी हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, हम भी ऐसा ही कहते हैं। क्या फर्क हो गया यार? हमारा कुरान कहता है इधर ही तुम्हें फायदा मिलेगा, वो फायदा बताता है ये फायदा मिलेगा, ये चीज होगी इसमें। बस मेरे भाइयों इतनी बात, आगे बड़ी शानदार आयत वो मैं अर्ज कर दूं। तुमसे फकत एक बात कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़ दो, तुम दो मिलकर या तन्हा खड़े होकर इस दावत के बारे सोचो तो सही। ये कुरान पाक, ये सूरत सबा की 46 नंबर आयत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान फरमाया गया है। काफिरों को कहा गया है कि मतलब तुम केले या दो होकर आपस में सलाह मशवरा तो करो। तो मैं माजल्ला किसी को काफिर नहीं कह रहा, मेरा जोर सिर्फ सोचने पर है कि मैं दावत देता हूं आपको इस सुन्नत पर अमल करते हुए कि जरा सोचो तो सही जो मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही शुरू हो जाते हैं गालियों पर, या शुरू हो जाते हैं कि ये तो दीन क्या खिलाफ है, ये लोग जो फलाने ग्रोह का, मलामती ग्रोह का या परवेज का, जो जो कुछ भी कहते हैं मुंह में आता है, नंगी गालियां भी देते हैं। मैं कहता हूं भाई जरा सोचो तो सही थोड़ा सा ठंडे दिल से कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ आपको। तो बस मेरे भाइयों ये बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।